Hello, dear students. Today we are going to read chapter number 3 of your book First Flight. The chapter is Two Stories About Flying, and we are going to do part number 2, Black Aeroplane. Students, this chapter has two parts. So, Black Aeroplane, written by Frederick Fawcett, that is the part that we are going to do. As the name suggests, the Black Aeroplane. What do you mean by it? An aeroplane lost in dark or an aeroplane black in color? Let's read the story and find out what exactly it means. The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. Now, students, the author was flying up in the east. I'm sorry, it's not the author, it's the narrator. Narrator and author are two different people. Do you know the difference between a narrator and an author? Yes, an author writes a story, a novel, or any piece of write-up. And the narrator is the one who narrates the story. So, a narrator and the author can be two different persons, or they can be one of them. So the students here, the moon was flying up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. Now, since the moon was coming up, what does it show? What kind of time was it? It must be night time. That's why the moon was coming up. There wasn't a cloud in the sky. There was no cloud in the sky, and I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. That means it was quite night. It was probably midnight. That's why the countryside, the country down there, the people were sleeping. And I was flying my old Dakota airplane over France back to England. Now he was going from France to England. He was flying up and he was going to his home. He was dreaming of his holiday and looking forward to being with my family. He said that he was dreaming. He went on a holiday and he was looking forward to being with his family. वो अपनी family से मिलने जा रहा था, वापस जा रहा था अपनी family के पास. And he looked at the watch, and what was the time at that time? It was 1:30 in the morning. That is, हम जैसे रात को बोलते हैं ना, 1:30 time था. So he thought I should call Paris control soon. I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. और जैसे ही उसने एरोप्लेन की टिप की तरफ देखा, he thought I should call the Paris control soon. किस लिए? So that he can connect to the Paris airport and can land there. I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. Now he called up Paris control और उसने अपने plane का number बताया, and he said that I am on my way to England. The voice from the radio answered immediately. DS088. I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088. Over. And then the Paris control soon replied him, and they told him कि अब आप जो है वेस्ट की तरफ 12 degrees वेस्ट की तरफ मूव करो. So this was actually radar with which he was trying to contact to the to that runway area. वहाँ पर रडार से हम कांटेक्ट करते हैं. जैसे जब हम प्लेन पे जाते हैं तो पायलट्स को कैसे रास्ता पता चलता है वहाँ पर कि कहाँ उनको टर्न करना है, किधर उनको स्ट्रेट जाना है. दिस कंट्रोल रूम्स दे टेल द पायलट्स. So I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank. और उसने अपना मैप चेक करा, अपना compass चेक करा, and everything was working fine.
और उसने अपना सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक जिसमें उसका फ्यूल था, जैसे कार में हम पेट्रोल डालते हैं ऐसे एरोप्लेन में जो फ्यूल डलता है उसका लास्ट टैंक था वो. एंड ही टर्न्ड द डेकोटा वाज द नेम ऑफ द प्लेन दैट ही वाज फ्लाइंग 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड. और जैसे ही कि कंट्रोल टावर से उसको मैसेज आया था वैसे ही उसने 12 डिग्रीज टर्न करा. I'll be there in time for breakfast, I thought. और अब उसको क्या एक्साइटमेंट हो गई कि मैं इतने दिनों के बाद अपनी फैमिली के साथ मैं ब्रेकफास्ट करूँगा. अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. और वो सोचा था कितना ईजी, मैं आराम से पहुँच गया. एवरीथिंग इज गोइंग सो वेल. एंड पेरिस वॉज अराउंड 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स. और एकदम से उसने क्या देखा कि पेरिस जो है वो 150 किलोमीटर्स पीछे है उसके. जब उसने आगे क्या देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, बड़े बड़े क्लाउड्स थे. दे वर ह्यूज, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. और ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैक माउंटेन्स हैं इसके सामने खड़े हुए एकदम से. और अब वो कैसे क्रॉस करेगा. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम. और वो उसको ये पता था कि वो उनके ऊपर से नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास इतना फ्यूल नहीं था. उसका लास्ट टैंक था वो, तो वो ऊपर से जा नहीं सकता था और वापस भी नहीं वो जा सकता था क्योंकि ऑब्वियसली अगेन he did not have that much of fuel. So I did not have enough fuel to fly over them to the north or the south. I ought to go back to Paris. अब उसने सोचा कि पेरिस वापस चला जाता हूँ. पेरिस कितनी दूर था, 150 किलोमीटर्स. येस, आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. और पेरिस भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास फ्यूल नहीं था, पहली बात इतना. और दूसरी बात, उसको अपना घर जाने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी. उसको ये था कि मैं अपने घर जाके अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करूँ. सो ही थॉट कि मैं इन क्लाउड्स के बीच में से निकल के जाता हूँ. आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. और वो क्लाउड्स के बीच में से एकदम चला गया. एंड इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक. और क्लाउड्स के अंदर एकदम सब कुछ ब्लैक था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. और वो कुछ भी बाहर देख नहीं पा रहा था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. और जो उसका प्लेन था अब वो बिल्कुल बम्पी हो गया था, एकदम जंप कर रहा था, कभी ट्विस्ट कर रहा था एयर में. एंड आई लुक्ड एट द कॉम्पस. आई कुडंट बिलीव हिज कॉम्पस स्टॉप्ड वर्किंग. थोड़ी देर पहले ही तो उसने चेक किया था कॉम्पस को, तो द कॉम्पस वॉज वर्किंग फाइन, बट नाउ इट हैड स्टॉप्ड वर्किंग. देन द कॉम्पस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. और कॉम्पस कैसे चल रहा था, एकदम गोल गोल घूमता जा रहा था. एंड इट वॉज डेड. इट वुड नॉट वर्क. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू. आई ट्राइड द रेडियो. और बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स भी एकदम डेड हो गए थे. एंड ही ट्राइड द रेडियो. पैरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी. और उसने रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश करी. कहाँ, पैरिस कंट्रोल में. एंड ही सेड, कैन यू हियर मी. There was no answer. The radio was dead too. तो उसका रेडियो भी डेड हो गया था. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. और अब उसको डर लगने लगा. क्यों? क्योंकि उसका रेडियो भी बिल्कुल बंद हो गया था and compass had stopped working और उसको कुछ बाहर दिख नहीं रहा था. So I was lost in the storm. And then in the black clouds quite near me I saw another aeroplane. और अपने ही एरोप्लेन के साथ उसने क्लाउड्स में एक एरोप्लेन और देखा. It had no lights on its wings. और उसके विंग्स पे कोई लाइट्स नहीं थी. But I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. अब बच्चों, उसको बाहर तो कुछ दिख ही नहीं रहा था. अभी थोड़ी देर पहले तो उसने बोला ना कि मेरे को बाहर कुछ नहीं दिख रहा था. तो हाउ कुड ही सी दैट ब्लैक एरोप्लेन. हाउ कुड ही सी दैट. इट वॉज उसकी कोई लाइट्स नहीं थी और उसको वो एरोप्लेन जो है साथ में चलता हुआ दिख रहा था. उसको पायलट का फेस भी दिख गया और उसने ये भी देखा कि पायलट ने अपना हैंड वेव करा उसकी तरफ, हाथ उठा के वेव करा कि मेरे को फॉलो करो, फॉलो मी. ही वॉज सेइंग फॉलो मी. He knows that I am lost, I thought. He is trying to help me. और डेकोटा के पायलट को कैसा लगा कि वो जो दूसरा एरोप्लेन का पायलट है उसको शायद पता है कि मैं
रास्ता भूल गया हूँ या मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा और मेरा प्लेन जो है वो इट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग, उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैव स्टॉप्ड वर्किंग, सो वो मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहा है. He turned his aeroplane slowly to the north in the front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. अब उसने उसके डेकोटा के प्लेन के सामने से ही अपना प्लेन नॉर्थ की तरफ टर्न करा सो दैट उसके लिए ईजी हो जाए उसको फॉलो करना. आई वॉज हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. नाउ द डेकोटा as the pilot was following that other plane, the strange aeroplane like an obedient, एकदम जैसे बड़ा अच्छा बच्चा होता है ना जो अपने पेरेंट्स को ओबीडियंटली फॉलो करता है, वैसे ही ये भी फॉलो करने लगा. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. और आधे घंटे के बाद वो स्ट्रेंज एरोप्लेन अभी भी उसके आगे ही था इन द क्लाउड्स. नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes. अब उसके पास कितना फ्यूल रह गया था कि वो खाली 5 या 10 मिनट और चल सकता था वहाँ पर क्लाउड्स में. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. अब उसको डर लगने लगा, अगर वहीं स्काई में ही फ्यूल ख़त्म हो गया तो क्या होगा. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. और जैसे ही उसने ये सोचा वैसे ही जो आगे वाला जो प्लेन था जो उसको हेल्प कर रहा था वो धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू हुआ. एंड दिस एरोप्लेन द डेकोटा ही ऑल्सो स्टार्टेड फॉलोइंग द अदर plane. Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. वो क्या होता है, रनवे होता है. जब हम प्लेन में जाते हैं तो पहले जो प्लेन है वो रनवे पर चलता है, वहीं से वो टेक ऑफ करता है और वहीं आके लैंड करता है और दोनों तरफ उसमें लाइट्स लगी होती हैं. तो जैसे ही वो क्लाउड से बाहर आया उसने क्या देखा, दैट देयर वर 2 long straight lines of lights in front of me. So that means he had reached the runway. और अभी वो थोड़ी देर पहले क्या सोच रहा था, उसके पास सिर्फ 5-10 मिनट का ही फ्यूल और रह गया है. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane. But the sky was empty. There was nothing there. अब वो कोशिश करी, उसने वहाँ पर आया पहले तो उसने देखा मैं अब सेफ़ हूँ और उसने अपने वो फ्रेंड को ढूंढने की कोशिश करी जिसने उसको हेल्प करा था, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, एकदम खाली स्काई था, कोई भी प्लेन नहीं था. देयर वॉज नथिंग देयर. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. और वो उसको कोई ब्लैक एरोप्लेन वहाँ पर नहीं दिखा, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो चला गया है. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर. अब वो उसने लैंड करा एंड ही वॉज वेरी रिलीफ. ही वॉज नॉट सॉरी कि वो अपना ओल्ड डेकोटा प्लेन जो है वो वहीं छोड़ के जा रहा है. ही वॉज वेरी हैप्पी दैट ही हैड रीच्ड सेफली, अदरवाइज उसको बहुत प्रॉब्लम हुई थी. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. अब वो कंट्रोल टावर में अंदर गया और जाके वो उसने वहाँ पर एक वुमेन बैठी थी, उनसे पूछा कि where was I and I wanted to thank the other pilot, so where that pilot has gone. She looked at me strangely and then laughed. और उस लेडी ने उसकी तरफ, डेकोटा के पायलट की तरफ बड़े स्ट्रेंज तरीके से देखा और हंसने लगी. एंड शी सेड अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म. कहती कोई और प्लेन इतने स्टॉर्म में. नो अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार. वो कहती कोई और प्लेन यहाँ पर फ्लाई नहीं कर रहा था एंड योर्स वॉज द ओनली वन जो मैं रडार पे देख सकती थी. So now the pilot of the old Dakota, he was really confused कि मुझे किसने हेल्प करा. फिर रडार पे कोई प्लेन दिखा नहीं, जब मैंने रनवे पे सेफली लैंड करा तो मुझे कोई प्लेन दिखा नहीं, तो मुझे हेल्प किसने किया. बट ही कुड नॉट मेक आउट. उसको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ मेरे साथ. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स. किसने उसको सेव करा. उसके पास ना कॉम्पास था, ना रेडियो वर्क कर रहा था, ना ही उसके पास फ्यूल था. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स. और कौन सा ये पायलट था जो ब्लैक एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा था विदाउट लाइट्स एंड ही वॉज फ्लाइंग अप हेयर इन द स्टॉर्म. So students, this was the chapter. Now we have to think. This is an open-ended chapter. We have to think
as to who helped him. Was it the conscious of the pilot of old Dakota? क्या उसके दिमाग ने ही उसको हेल्प करी? His subconscious mind probably helped, or it was some supernatural power, शायद कोई भगवान या कोई देवता ने आके उसको हेल्प करी. This is all up to us, how we think of the ending of this chapter, right? So now I request you all to read this chapter and find out difficult words, find out their meanings, and attempt them in your notebook. Happy reading, all of you.